Good morning, students. I hope you fit and fine at your home. I am your English teacher, Minakshi Harsh. Today I teach you English grammar, and today's our topic is articles. Do you know about alphabet? In our alphabet, there are 26 letters and 5 vowels. Vowels A, E, I, O, U are our vowels, and rest of 21 our consonant. Articles are a, an and the. Today we learn how we apply a and an. First of all, we have to be knowledge about vowels and consonant letter, and as well as consonant sound and vowel sound. A. A is used before words starting with the consonant sound. Whenever we have to be apply A and N, first of all we have to be see of any word. If any word's first letter is consonant, then we apply A, and if the first letter is vowel, then we apply N. We have to be see letter as well as the pronunciation of that letter, also vowel and consonant sound. N is used before words starting with the vowel sound. We can learn with the examples also, as here is a book. Book, B. B is our consonant letter and our consonant sound also B. So we apply here A. Now the second, chair. The first letter is C, Ch. Ch is our consonant sound and also our consonant letter. So we apply here A. Aunt. A our vowel letter, as well as here the sound is a vowel sound. Aunt. So we apply here N. Orange. O. O is our vowel sound and also our vowel letter. So we apply here N. Apple. A is our vowel sound and also our vowel letter. So we apply here N. Now this is exception. Here we have to be presence of our mind. H. H our consonant letter, but the pronunciation of H is not H. It is O. Honesty. That word's pronunciation is not honesty. The pronunciation of that word is honesty, and O is our vowel sound, so we apply here N. If there is a pronunciation ho, then we apply A, but the pronunciation is O, honesty, so we apply here N. That is, H is our consonant letter, but the sound is not consonant. The sound is vowel, so we apply here N. Everyone understand? Now I teach you in Hindi. हिंदी में आप देखते हैं कि हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं. स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग. ये हमारे स्वर होते हैं. कॉन्सोनेंट होते हैं क से लेकर ज्ञ तक. क, ख, ग, गंग, छ, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, छत्र, ज्ञ. अगर क से लेकर ज्ञ तक किसी भी लेटर की साउंड इससे आ रही है तो हमें ए लगाना है, और अगर अ से लेकर अंग तक अगर आवाज आ रही है तो हमें एन लगाना है. यहाँ पे ओ जो है वो हमारी वॉवेल साउंड है. एच हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे एन अप्लाई किया है. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द. द इज ऑल्सो एन आर्टिकल. द भी हमारा आर्टिकल है. मैंने बताया था आर्टिकल्स आर ए, एन एंड द. द भी हमारा आर्टिकल है. इट इज यूज्ड टू से समथिंग इन पर्टिकुलर अबाउट ए पर्सन और थिंग. ये बताने के लिए यूज होता है. किसको बताने के लिए? हमने अगर उसके बारे में पहले से बात कर रखी है, चाहे वो पर्सन है और चाहे वो थिंग है, अगर हमने उसके बारे में पहले से बात कर रखी है, अब उसी के बारे में हम वापस बात कर रहे हैं, तो हम द लगाते हैं. इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में
बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा सकती हूँ। कैसे? हम जब स्टोरी पढ़ते हैं, वंस देयर वाज ए किंग, यहाँ पे किंग के आगे मैंने ए लगाया है। क्यों? क्योंकि के हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, साथ ही साथ इसका साउंड भी क है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लगाया है। फिर मैं लिखती हूँ द किंग हैड 4 सन्स। अब मैं किंग के आगे द लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसी किंग के बारे में बात कर रही हूँ, उसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे द आर्टिकल लगाना है। आपको समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एरोप्लेन है, एरोप्लेन के आगे हमें एन लगाना है, क्योंकि ए हमारा वॉवेल लेटर भी है और इसमें वॉवेल साउंड भी आती है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, एक एरोप्लेन जो आसमान में उड़ रहा है। द एरोप्लेन, उसी एरोप्लेन के बारे में बात हो रही है। द एरोप्लेन इज कैरिंग मैनी पैसेंजर्स, कि वो जो एरोप्लेन है वो बहुत सारे पैसेंजर्स को लेकर जाता है। आपको समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हम उसी एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आप सभी को आर्टिकल समझ में आ गए हैं। 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। किसी भी आर्टिकल को यूज करने से पहले हमें सबसे पहले उसके वर्ड को देखना होता है और उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखना होता है। देन वी अप्लाई ए एंड एन। द में हमें ये देखना होता है क्या हम उसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें द का यूज करना है। अब मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ। इस वर्कशीट में 12 एग्जाम्पल है। आपको ये वर्कशीट अपने घर पे करनी है। इस वर्कशीट में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और इसे आपको लिखना है। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अब मैं आपको इसका एक पूरा, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें।